तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम ये वाला चैप्टर पढ़े। अब कल हमने एक्सपीरियंस पढ़ा था उस पर्सन का जो अपना अल्कोहलिज्म नहीं कर पा छोड़ पा रहा था। तो उसने बहुत विल पावर एक्सरसाइज की। मैं डिटर्मिनेशन, आई टेक इट, आई विल नॉट ड्रिंक इट, आई विल नॉट ड्रिंक इट, आई विल नॉट ड्रिंक इट, इस तरह कर करके। बट डिटर्मिनेशन वर्क करती नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है। फिर उसको ये पता लगा, ये वाली साइंस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में। फिर उसने सोचा कि ओके, लेट मी डू दिस नाउ। अब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उसने स्लीपी ड्राउजी स्टेट क्रिएट करके अपने आप को बोला दैट आई एम ऑन दिस न्यू पाथ ऑफ फ्रीडम, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। 3 चीजें। आई एम ऑन माई न्यू पाथ ऑफ फ्रीडम, सोब्राइटी मतलब सोबर रहना, एंड पीस ऑफ माइंड। और ये बोलता गया दैट आई एम फ्री। एंड उसके बाद जब उन्होंने कुछ टाइम किया, और वो विजुअलाइजेशन के साथ उन्होंने किया था। विजुअलाइजेशन में वो देखते थे कि वो अपने घर वापस आ गए, बीवी और बेटी के पास। बेटी से उनको बहुत प्यार था, बेटी के पास वापस आ गए। और बेटी उनको बोल रही है, मतलब बहुत हैप्पीली बात कर रही है, क्योंकि उनका बात करने वाला रिश्ता नहीं था ड्रिंकिंग के कारण। तो विजुअलाइज करते करते फाइनली वो दिन आ गया, और फिर उन्होंने एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में उनको काम लगा, और उन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस भी आई, और रिश्ते भी अच्छे हो गए, है ना। अब हम एक और एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं मिस्टर ब्लॉक के बारे में। सॉरी, मैं मिस्टर ब्लैकवुल, मिस्टर ब्लॉक के बारे में। एंड मोहित जी, शालिनी के हस्बैंड, विल बी रीडिंग फॉर अस। He had a Zinx was following. He said a Zinx was following him. Mr. Block said that he had been making an annual income of $20,000, but for the past 3 months, all doors seemed to jam tightly. He brought clients up to the point where they were about to sign on the dotted line, and then at the 11th hour, the doors closed. He added that perhaps a Zinx was following him. In discussing the matter with Mr. Block, I discovered that 3 months previously, he had become very irritated, annoyed, and resentful towards a dentist who, after he had promised to sign a contract, had withdrawn at the last moment. He began to live in the unconscious fear that other clients would do the same, thereby setting up a history of frustration, hostility, and obstacle. He gradually built up in his mind a belief in obstruction and last minute cancellations until a vicious circle had been established. What I fear most has come upon me. Mr. Block realized that the trouble was in his mind and that it was essential to change his mental attitude. His run of so called misfortune was broken in the following way. I realize I am one with the infinite intelligence of my subconscious mind, which knows no obstacle, difficulty, or delay. I live in the joyous expectancy of the best. My deeper mind responds to my thoughts. I know that the work of the infinite power of my subconscious cannot be hindered. Infinite intelligence always finishes successfully whatever it begins. Creative wisdom works through me, bringing all my plans and purposes to completion. Whatever I start, I bring to a successful conclusion. My aim in life is to give wonderful service, and all those whom I contact are blessed by what I have to offer. All my work comes to full fruition in divine order. He repeated this prayer every morning before going to call on his customers, and he also prayed each night prior to sleep. In a short time, he had established a new habit pattern in his subconscious mind, and he was back in his old, accustomed stride as a successful salesman. या ये उन लोगों के लिए ये वाला बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है जिनके पास पेमेंट आती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन आते आते खत्म हो जाता है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है, होता ही नहीं है। मतलब बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई है कि पैसे आ रहे हैं बट आने बंद हो जाते हैं।
एकदम से नहीं आते हैं, तो ये उनके लिए है। तो ये मिस्टर ब्लॉक जो थे, इनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे से पैसे आ रहे थे हर जगह से। एकदम से कुछ हुआ, 3 महीने उनके पैसे ही नहीं आए, उनका बिजनेस एकदम नीचे चला गया। ऐसा नहीं था इंक्वायरी नहीं आ रही थी, इंक्वायरीज आ रही थी, सारी बात हो रही थी, लेकिन जिस दिन मनी आ रहा होता था ना, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, तो उस क्लाइंट का पैसा ही नहीं आता था। फिर ये मिस्टर ब्लॉक गए डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास, जिन्होंने ये किताब लिखी है। उन्होंने उनको अपनी सिचुएशन बताई। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने 1 सेकंड में क्रैक कर ली। उन्होंने कहा, मतलब कुछ ऐसा हुआ था 3 महीने पहले कि एक डेंटिस्ट उनके पास आए थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो भी मिस्टर ब्लॉक का बिजनेस था। तो डेंटिस्ट आए थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साथ। बस उस डेंटिस्ट ने जिस दिन साइन हो रहा था ना डॉटेड लाइन पे, उस दिन डेंटिस्ट ने माइंड अपना चेंज कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना। एंड उसके बाद से एक फियर बैठ गया मिस्टर ब्लॉक के मन में कि पता नहीं, क्लाइंट मेरे पास आते हैं, लास्ट मोमेंट होता है, फिर मुझको पैसे नहीं देते। और इस फियर के साथ वो 3 महीने जी रहे थे, क्योंकि उस डेंटिस्ट का बहुत बड़ा सा ऑर्डर आया था इनके पास। वो ऑर्डर आते आते कैंसिल, मतलब पैसे आ रहे थे उस दिन और उस दिन कैंसिल हो गया। तो उसके बाद से वो फियर में जी रहे थे। तो फियर जब होता है तो पैसे नहीं आते ना, आई मीन वी ऑल नो दैट इट गोज डाउनवर्ड। तो ये फियर था, तो उनके पास पैसे नहीं आए। और इस फियर में वो जीते गए, जीते गए, जीते गए। तो वो 3 महीने हो गए। तो फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर का फियर जो है, ये हमको निकालना है। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी एफर्मेशन इनको बताई, जो हमने यहाँ पे येलो से मार्क की हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी अंदर की क्रिएटिव इंटेलिजेंस में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है और कोई डिले नहीं है ना। ये चीज हमने फ्लोरेंस कॉबल्शन की किताब में भी पढ़ा था कि देयर इज नेवर एनी डिले इन द realm ऑफ गॉड, right? And God is always on time. So like that. So actually सबकॉन्शियस माइंड में कोई डिले नहीं होता। फिर उन्होंने ये लंबी सी एफर्मेशन बोली, जिसका अर्थ ये है दैट आई लिव इन द एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बेस्ट, एंड मेरा जो डीप माइंड है वो मेरे थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है। और अब मेरे थॉट्स इस तरह के होते हैं, एंड क्रिएटिव विजडम मेरी वर्क कर रही है और मेरे सारे प्लान्स एंड पर्पस को फ्रूटफुल बना रही है। और मैं जो भी शुरू करता हूँ उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करता हूँ। कंक्लूजन नहीं हो रहा था ना उनकी जिंदगी में, उनका क्लोज नहीं हो रही थी डील। इंक्वायरी आती जा रही थी, आती जा रही थी, आती जा रही थी, ऐसा नहीं था इंक्वायरी नहीं आ रही है, बट वो क्लोज नहीं हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि मैं जो भी शुरू करता हूं, मैं उसको सक्सेसफुल कंक्लूडिंग करता हूं। और मेरा एम लाइफ का ये है दैट मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत वंडरफुल सर्विस दूं, और जो भी मेरी कंपनी से एसोसिएटेड है वो बहुत ब्लेस्ड हों मेरे, अब जो मैं ऑफर कर रहा हूं उसकी वजह से। दैट वे ऑल माई वर्क कम्स टू फुल फ्रूशन इन डिवाइन ऑर्डर। और मेरा सारी इंक्वायरी सब फ्रूशन, आई ऑल माई वर्क कम्स टू अ फुल फ्रूशन इन डिवाइन ऑर्डर, राइट दैट। और ये रोज लाइक ये प्रेयर रिपीट करते थे रोज सुबह, रोज सुबह। और कोई भी कस्टमर की कॉल या कुछ ऐसे होता है ना, इंक्वायरी आती थी, उनसे बात करने के पहले इस प्रेयर को करने लगे। एंड वेरी सोन, और रात को सोने के पहले। तो सुबह तो करते ही थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग ये वाली प्रेयर करते थे। और जब भी उनको क्लाइंट कॉल के लिए जाना होता था, या क्लाइंट कॉल या कोई मीटिंग होती थी, तब वो करते थे। और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न स्टैब्लिश हो गया। एंड वो ये नहीं किया कि आई विल डू इट, आई विल पावर। उन्होंने अपनी नई इंफॉर्मेशन डाली कि मैं जो काम करता हूँ उसका बहुत फ्रूटफुल कंक्लूजन आता है। और मैं जिस भी चीज को शुरू करता हूँ वो बहुत अच्छे से डिवाइन ऑर्डर में कंप्लीट हो जाती है, इस तरह करके। एंड एवरीथिंग चेंज इन हिज लाइफ दैट वे। हाँ जी। How much do you want what you want? A young man asked Socrates how he could get wisdom. How much do you want what you want? A young man asked Socrates how he could get wisdom. Socrates replied, come with me. He took the lad to a river, pushed the boy's head under the water, held it there until the boy was gasping for air, then relaxed and released his head. When the boy regained his composure, he asked him, what did you desire most when you were underwater? I wanted air, said the boy.
Socrates said to him, when you want a wisdom as much you wanted air, when you were immersed in the water, you will receive it. Likewise, when you really have an intense desire to overcome any block in your life and you come to a clear cut decision that there is a way out and that is the course you wish to follow, then victory and triumph are assured. If you really want peace of mind and inner calm, you will get it, regardless of how unjustly you have been treated, or how unfair the boss has been, or what a mean scoundrel someone has proved to be. All this makes no difference to you when you awaken to your mental and spiritual powers. You know what you want, and you will definitely refuse to let the thieves, thoughts of hatred, anger, hostility, and ill will rob you of peace, harmony, health, and happiness. You cease to become upset by people, conditions, news, and events by identifying your thoughts immediately with your aim in life. Your aim is peace, flowing through with you now. Your thought is the immaterial and invisible power, and you choose to let it bless, inspire, मोहित जी, there's a line we have missed. ये your aim जो है ना, नीचे से 5वीं लाइन वहां से आप पढ़िए, वो पीस हेल्थ इंस्पिरेशन हार्मनी एंड अबंडेंस वाली लाइन मिस हो गई है. yes, ma'am. Your aim is peace, health, inspiration, harmony, and abundance. Feel a river of peace flowing through you now. Your thought is the immaterial and invisible power, and you choose to let it bless, inspire, and give you peace. ये हाँ, इस वाले पैराग्राफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि दिमाग में जब तक पीस का बेड नहीं होता ना, जब तक रिवर ऑफ पीस नहीं फ्लो होती है, तब तक आपकी लाइफ ग्रो नहीं होती है. तो इसमें सोक्रेटिस का एग्जाम्पल है कि एक छोटा बच्चा था, उसको मतलब वो एक बार वो कुछ मांग रहा था ऐसे ही, तो वो उसको रिवर पे लेके गए और उसका उसका जो सिर था उन्होंने पानी में डाल दिया, दबा के रखा पानी में. और वो ऑब्वियसली उसकी सांस चढ़ने लग गई थी पानी के अंदर. फिर उन्होंने उसका सिर निकाला और बोला कि देखो, जब तक जिंदगी में तुम्हारा बर्निंग डिजायर नहीं होगा ना, जैसे तुम इस वक्त अभी एयर के लिए चाह रहे थे कि मुझे मुझे सांस लेनी है, मुझे सांस नहीं आ रही है पानी के अंदर, तो आप सांस लेने के लिए आपने सिर अबव द वाटर अपना सिर रखा था. यही जिंदगी में जब तक ये पैशन, ये बर्निंग डिजायर नहीं आता है, तब तक वो चीज आपके पास आती नहीं है. सो बी वेरी पैशनेट अबाउट हैविंग समथिंग, नॉट द लैक ऑफ इट, है ना, अबाउट हैविंग समथिंग कि मुझे ये चाहिए एंड आई विल अचीव इट. वो हो साथ में. और फिर उसके बाद आपका हार्ट बहुत पीसफुल होना चाहिए, बिकॉज अगर टर्मोइल या इस चीज में करेंगे ना, मेरे पास ये नहीं है, 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 तो वो चीज कभी हमारी जिंदगी में नहीं आती है ना. तो ये भी बहुत जरूरी होता है. तो वैसे भी हमारे पास तो ये एफर्मेशन है रिवर ऑफ पीस के लिए. आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड. अगर आप ये करोगे अपने लिए, आप देखना दैट आपका सी ऑफ चेंज होना शुरू हो जाएगा लाइफ में. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन के कारण आपका वो लाइक वो बेड जो होगा, रिवर बेड, वो पीसफुल होगा. और जिसके कारण आप देखोगे कि बहुत सारी ग्रोथ एंड सक्सेस आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली सेइंग आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ. पीस तो ये छोटी एफर्मेशन लगती है कि पीस से क्या हो जाएगा, रिश्ते कैसे अच्छे होंगे, लेकिन एक पीसफुल माइंड इज लाइक डायमंड. उसकी बहुत वैल्यू होती है. आप सोचो कि अगर किसी से आपका रिश्ता खराब है, तो एक पीसफुल माइंड बहुत फॉरगिविंग हार्ट होगा ना. उसको पीस मतलब आप इतने शांत इंसान हो कि मेंटली शांत हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चिल्ला रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप अपने जोन में हो और आपका हार्ट बहुत पीसफुल हो चुका है, बिकॉज रेपिटेशन के कारण अपने अपने हार्ट को पीसफुल कर लिया है. और जब रिश्ते आपको बॉदर नहीं करेंगे, तो अपने आप पैसा अट्रैक्ट होगा और बॉडी में हीलिंग होगी. बिकॉज अगर न्यूरॉन्स हमारे नेगेटिव फायरिंग नहीं कर रहे हैं और उनकी फायरिंग ही चेंज हो गई है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दैट आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड, है ना. तो अब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो ही नहीं रही आपके दिमाग में. ऑब्वियसली यू विल बिकम अ मैग्नेट टू सक्सेस, मनी एंड हीलिंग. बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना. बिकॉज हर एक न्यूरॉन आपके सेल से कनेक्टेड होता है, और सेल्स एबनॉर्मली वर्क करते हैं तभी ना हीलिंग नहीं हो रही है ना. तभी तो बीमारी है ना, क्योंकि सेल्स हील नहीं हो रहे हैं.
और पीसफुल जैसे ही आप बोलोगे आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, विथ एवरीवन एंड विद द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सब फेमिलियर हो इस सेंटेंस से, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, है ना। जैसे इन्होंने भी बहुत पीस के बारे में लिखा है कि आपकी लाइफ, योर एम इज पीस, हेल्थ, इंस्पिरेशन, हार्मनी एंड अबंडेंस। इसको अपना एम बना लो। फील अ रिवर ऑफ पीस फ्लोइंग थ्रू यू नाउ, राइट। योर थॉट इज द इमटेरियल एंड इनविजिबल पावर। तो आपके थॉट जो है, अगर पीस आपका बेड होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते, और आप अपनी जिंदगी में डिफरेंस होता हुआ देखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, है ना। तो ये बोल रहे हैं अपनी जिंदगी को यूज करो, ब्लेस, इंस्पायर एंड गिव यू पीस, जो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसको और एस्केलेट कर सकते हैं इस वाले सेंटेंस को या एफर्मेशन को। I'm at peace with myself, with everyone, and with the whole world that way. And you will see the difference. हाँ जी, next Uh, topic. not be healed. This is a case history of a married man with 4 children who was supporting and secretly living with another woman during his. He was ill, nervous, irritable, and cantankerous, and he could not sleep without drugs. The doctor's medicine failed to bring down his high blood pressure of over 200. He had pains in numerous organs of his body, which doctors could not diagnose or relieve. To make matters worse, he was drinking heavily. The cause of all this was a deep, unconscious sense of guilt. He had violated the marriage vows, and this troubled him. The religious creed he was brought up on was deeply lodged in his subconscious mind, and he drank excessively to heal the wound of guilt. Some invalids take morphine and codeine for severe pains. He was taking alcohol for the pain or wound in his mind. It was the old story of adding fuel to the fire. Yeah, well, so this is about the experience. अभी हम पढ़ेंगे इसी के बारे में आगे कि कैसे क्या हुआ था, बट इसमें बताया है कि एक मैरिड मैन था, वो बहुत गिल्ट में रहता था। गिल्ट में इसलिए रहता था क्योंकि वो 100% अपना वाइफ और बच्चों को नहीं दे पा रहा था। वाइफ बहुत अच्छी थी, 4 बच्चे थे उनके, और उनके बिजनेस के कारण बहुत ट्रिप्स होते थे, तो बिजनेस वहां पे वो किसी दूसरी दूसरी विमेन के साथ रहता था। तो ही वॉज वायलेटिंग दैट मैरिज वाउ। और इतनी अच्छी बीवी, और क्योंकि उसकी बीवी बच्चे इतना सपोर्टिव, इतने अच्छे थे, तो वो बहुत गिल्ट में रहता था कि मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो वो गिल्ट के कारण उसकी तबीयत खराब होती गई, और उनको ब्लड प्रेशर 200 के ऊपर रहने लगा, और बहुत सारे उनको इधर उधर एक्स एंड पेन्स पूरी बॉडी में होते रहते थे। तो बाकी लोग तो दवा ले लेते हैं अपनी बीमारी के कारण, ये उस सप्रेस करने के लिए, और वो उस गिल्ट को सप्रेस करने के लिए इन्होंने अल्कोहल पीना शुरू किया, और वो ओवर ड्रिंकिंग करने लगे। फिर उसके बाद आगे है, हम पढ़ते हैं। हाँ जी। The explanation and the cure. He listened to the explanation of how his mind worked. He faced his problem, looked at it, and gave up his dual role. He knew that his drinking was an unconscious attempt to escape. The hidden cause lodged in his subconscious mind had to be eradicated, then the healing would follow. He began to impress his subconscious mind 3 or 4 times a day by using the following prayer. My mind is full of peace, poise, balance, and equilibrium. The infinite lies stretched in smiling repose within me. I am not afraid of anything in the past, the present, or the future. The infinite intelligence of my subconscious mind leads, guides, and directs me in all ways. I now meet every situation with faith, poise, calmness, and confidence. I am now completely free from the habit. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I forgive myself, then I am forgiven. Peace, sobriety, and confidence reign supreme in my mind. He repeated this prayer frequently as outlined, being fully aware of what he was doing and why he was doing it. Knowing what he is doing gave him the necessary faith and confidence. I explained to him that as he spoke these statements out loud, slowly, lovingly, and meaningfully, they would gradually sink down into his subconscious mind.
Like seeds, they would grow after their kind. These truths on which he concentrated went it through his eyes, his ears heard the sound, and the healing vibrations of these words reached his subconscious mind and obliterated all the negative mental patterns which caused all the trouble. Light dispels darkness. The constructive thought, these stories, the negative thought. He became a transformed man within a month. या सो दिस इज अबाउट कि उन्होंने फिर ये रियलाइज किया कि मैं किसी चीज से भाग रहा हूँ। जब आप एस्केप करना चाहते हो तभी आप स्मोकिंग या ड्रग्स या ऐसी कुछ चीज करते हो ना। तो उनको ये पता लग गया था कि मैं अपने आप को फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सिचुएशन, मेरे अंदर ये गिल्ट है। तो मुझे अपने आप को माफ करने की जरूरत है और मुझे हर चीज को माफ करने की, हर इंसान को माफ करने की। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। वो भी ये साथ साथ बोलते थे दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन, है ना। और फिर उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड या परमात्मा से प्रे करते थे, जो सुप्रीम गॉड होते हैं, दैट गॉड इज लीडिंग मी, डायरेक्टिंग मी, यू नो, एंड गाइडिंग मी। सो लीडिंग मी, डायरेक्टिंग मी एंड गाइडिंग मी इन ऑल माय वेज, मतलब भगवान मुझको लीड कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे हर एक एरिया में। और मेरे अंदर वो पावर है दैट आई कैन डू एनीथिंग। और ये लंबी चौड़ी सी एफर्मेशन है जिसमें अगर आपको यूज करनी है इसको, तो आप इसको एडिट करके अपने चॉइस ऑफ सेंटेंसेस भी ले सकते हो। तो वो बोलते थे माय माइंड इज फुल, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टर्मोइल रहता था, है ना। गिल्ट जिस इंसान को है वो 24 घंटे उस गिल्ट में रहता है। तो उन्होंने अपने आप को बोलना शुरू किया दैट माय माइंड इज फुल ऑफ पीस, पॉइस, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मतलब मैं मेंटली बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ। And the infinite lies stretched in smiling repose within me. I'm not afraid of anything in the past, the present, or the future. है ना। गिल्ट में ये फियर में ही रहते हैं ना। तो उन्होंने ये कहा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द infinite intelligence of my subconscious mind leads me, guides me, and directs me in all ways. I now meet every situation with faith, poise, calmness, and confidence. आई एम नाउ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द हैबिट, क्योंकि अल्कोहल की भी जो हैबिट थी ना उनको, उससे भी उनको पीछा छुड़ाना था। तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस हैबिट से, नाम नहीं लिया अल्कोहलिज्म, ये लिखा बस आई एम नाउ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द हैबिट। माई माइंड इज फुल ऑफ इनर पीस, विजडम, फ्रीडम एंड जॉय। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड देन आई एम फॉरगिवन। पीस, सोब्राइटी एंड कॉन्फिडेंस रेन सुप्रीम इन माई माइंड। ये बोल बोल के लगातार ये बोलते रहे, जिसके कारण ही वॉज कंप्लीटली अ चेंज्ड मैन। बट इन सब में आप देखो दैट रेपिटेशन के कारण कोई भी प्रेयर, जो भी एफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, वो सिंक इन होती है। तो अगर रेपिटेशन नहीं होता है तो वो सिंक इन नहीं होती है। अगर एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, फिर 3 दिन भूल गए, फिर से किया, तो जो आपका बर्निंग डिजायर है उसके लिए आपको अपने आप पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जो सारे लोग हम देख रहे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने लगातार किया था। साइंस के हिसाब से 15 दिन में फर्क आने लग जाता है अगर आप कोई चीज रोज रिपीट करते हो तो। और 21 डेज में वो सीमेंट हो जाती है। लेकिन उसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपको 90 डेज लगते हैं। ठीक है। एंड 90 × 3 अगर आपने कोई भी चीज बोल ली, लिख ली या कर ली, तो वो अब परमानेंस ले लेती है। सो इतनी पावर होती है। एंड इमेजिन अगर हमने जिंदगी अपनी किसी वरी में या किसी चीज के लैक में बिताई है, लैक ऑफ लव में बिताई है, लैक ऑफ मनी में बिताई है, लैक ऑफ सक्सेस में बिताई है ना। कोई बात नहीं, क्या हम 3 महीने, 9 महीने नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। कोई चीज, हमारा कुछ बर्निंग डिजायर है, अगर हम उसके लिए कोई एफर्मेशन लिख रहे हैं, तो हम उसके लिए 9 महीने दे सकते हैं ना। तो 3 महीने × 3 अगर आपने कुछ लिया, वो परमानेंट चेंज आपकी जिंदगी में आ जाता है, और नॉट जस्ट अभी के लिए, हमेशा के लिए, दैट वे। सो टाइम देख लेते हैं फिर हम आगे का। इट्स ऑलरेडी टाइम। सो थैंक यू मोहित जी, दिस इज हाउ मच विल बी एबल टू स्टडी। थैंक यू, थैंक यू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली।